Hello everyone, welcome to Generations Ed Education and I'm your educator श्रीजा बैनर्जी और मैं फिर से आप लोगों के सामने एक नया कुछ लेकर आई हूँ और वो है वीकली करंट अफेयर्स जो कि आपको आज से कंटिन्यूअसली मिलता रहेगा और ये खासकर मैंने उन लोगों के लिए सोचकर बनाया है जिनका अपकमिंग एग्जामिनेशंस है और उनके लिए पेपर पढ़ने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है क्योंकि काफी दूसरे सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनका रिवीजन करना पड़ रहा है, बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ रहा है, दूसरे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने पड़ रहे हैं। सो ऐसे वक्त पे एग्जाम के पहले न्यूज़पेपर पढ़ने का बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल पा रहा है। उन लोगों के लिए हेल्प करने के लिए मैंने ये वीडियो लॉन्च किया है। ओके, एंड लेट मी टेल यू दैट ये करंट अफेयर्स का वीकली करंट अफेयर्स का जो वीडियो है ये हर किसी के लिए उपयोगी है, हेल्पफुल है। स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को भी इसका हेल्प मिलेगा and people who are preparing for job interview, they will also get updated information, various information related to economy, finance, and all. So many things are there, you know, sports and all. So without wasting time, let's start the video then. Okay, so इसकी खासियत ये भी होगी कि आपको पूरे वीक का जितना भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनता है वो आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद है। ओके, लेट्स स्टार्ट देयर। क्वेश्चन नंबर 1, who chaired the 13th BRICS summit virtually? Question number 1, who chaired the 13th BRICS summit virtually? So आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे 13th BRICS summit का फोटो दिया गया है। यहाँ पे 5 लोग खड़े हैं। सो आपको मैं इनके बारे में डिटेल्स में बताने जा रही हूँ। उससे पहले लेट्स कवर द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, सो who chaired the 13th BRICS summit virtually? Options are Vladimir Putin, Xi Jinping, then Jair Bolsonaro and PM Narendra Modi. So the right answer would be option D. Prime Minister Narendra Modi has chaired the 13th BRICS summit virtually. Okay, now let me tell you what is BRICS summit. The 2021 BRICS summit is the 13th annual BRICS summit. As we already know this, हमको ये फोटो में भी देखने को मिल रहा है। It is 13th BRICS summit and international relation conference. ये summit है, एक international relation conference है जो कि अटेंड किया गया है हेड्स ऑफ द स्टेट्स और हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द 5 मेंबर स्टेट्स। मेंबर स्टेट्स कहा जा रहा है, एक्चुअली ये कंट्रीज है। सो कंट्रीज कौन से हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ओके, एंड इट विल बी द थर्ड टाइम दैट इंडिया विल बी होस्टिंग द ब्रिक्स समिट। ओके, नाउ कम डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2, Kong Thong village, which has been nominated as an UNWTO Best Tourism Village, is located in which state? So, Kong Thong village, जो कि UNWTO Best Tourism Village का जिसे अवार्ड मिल चुका है, वो किस स्टेट में सिचुएटेड है? Your options are Manipur, option B Arunachal Pradesh, option C Mizoram and option D Meghalaya. So right answer would be option D. So Meghalaya's Whistling Village, Kong Thong has been nominated by the Ministry of Tourism for the UNWTO. WTO stands for World Tourism Organization. यहाँ आपको देखने को मिल रहा है World Tourism Organization and they have got the Best Tourism Village Award. Okay, now come down to the question number 3. Which name of the portal launched by the Ministry of Environment to regulate air pollution in 132 non-attainment cities across the country? So ऐसा कौन सा पोर्टल है जो कि लॉन्च किया गया है by the Ministry of Environment to regulate air pollution in 132 non-attainment cities across the country? Options क्या क्या है? Option A है प्रना, Option B हरियाली, Option C परिवेश, Option D वायु. So right answer would be option A, that is Prana. So Union Minister of Environment, Forest
एंड क्लाइमेट चेंज। कौन है वो? भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव जी हैं, जिन्होंने लॉन्च किया है पोर्टल नेम्ड प्रना फॉर द रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन in 132 cities across the country. Okay, come down to the question number 4. India's tallest air purification tower has been installed in which state or union territory of the country? So पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे जो पिक्चर आपको प्रोवाइड किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका इनॉग्रेशन हुआ है एंड ये काफी डेकोरेटेड है और काफी लंबा भी है. So यही है क्वेश्चन. इंडिया टॉलेस्ट एयर प्यूरिफिकेशन टावर कहाँ पे इंस्टॉल्ड है? ऑप्शंस आर तमिलनाडु, असम, चंडीगढ़, दिल्ली. योर राइट आंसर वुड बी ऑप्शन सी, दैट इज चंडीगढ़. एक्सप्लेनेशन वाइज अगर आप देखना चाहें तो ये इनॉग्रेटेड हुआ है इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़. ओके, एंड कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 5. Who has been reappointed as the MD and CEO of the IDFC First Bank by RBI for a further 3 years? So कौन reappointed हुआ है MD और CEO के हिसाब से IDFC बैंक में by the Reserve Bank of India for further 3 years? Options are Shyam Srinivasan, option B J Pakirisamy, then option C B Vaidyanathan, and option D Ravneet Gill. So right answer would be option C. Explanation wise आप अगर जानना चाहें तो देखिए, the Reserve Bank of India RBI has granted its approval for the reappointment of P Vaidyanathan as the Managing Director and Chief Executive Officer of the IDFC Bank first. So option right answer है P Vaidyanathan. Come down to the question number 6. The NIRF India Ranking 2021 is which edition of the annual ranking of the institutions and universities in India launched by the Ministry of Education? So NIRF India Ranking 2021 के हिसाब से ये कौन सा एडिशन है जिसमें एनुअल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटीज को दिया गया है, लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. So options are 3rd, 6th, 4th and 7th. So right answer कौन सा होगा? Option B. It is the 6th one. The Union Minister of Education Shri Dharmendra Pradhan released the 6th edition of NIRF India Rankings 2021 through video conference. So of course COVID-19 की वजह से हर चीज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही किया जा रहा है. Okay, come down to the question number 7. The research institution category is the newly introduced category in the India Rankings 2021. Which Indian institution has topped in this category? Research institution category में ये एक newly introduced category है Indian Rankings में 2021 का. इसमें से कौन से इंस्टीट्यूट को टॉप रैंक मिला? ओके, your options are IIM Ahmedabad, IIM Delhi, IISc Bangalore and IIT Madras. So your right answer would be option C, that is Indian Institute of Science, that is IISc Bangalore has topped this category. So आपको यहाँ पे फोटो देखने को मिल रही है IISc Bangalore का, यही है तस्वीर. Okay, come down to the question number 8. Who has been named as the new captain of Afghanistan's men's cricket team for the T20 World Cup? New captain of Afghanistan किसको बनाया गया है मेंस के क्रिकेट टीम का T20 वर्ल्ड कप में? ऑप्शंस आर असगर अफगान, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नाइब, समीउल्लाह शेनवारी. So right answer would be option B, that is Mohammad Nabi. So veteran all-rounder Mohammad Nabi has been named as the new captain of Afghanistan. इनको new captain appoint किया गया है of men's cricket team upcoming T20 World Cup के लिए. Okay, and Rashid Khan कौन थे? Rashid Khan stepped down for captaincy in protest against the selection of national squad without his inputs. That's why
मोहम्मद नबी को न्यू कैप्टन सिलेक्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, which subsidiary of ICICI Bank has ceased to function as the subsidiary of the bank? कौन सा सब्सिडियरी ऑफ ICICI बैंक है जिसको सीज कर दिया गया है, cease to function as the subsidiary of the bank? Your options are option A ICICI Lombard, ICICI Direct, ICICI Prudential, ICICI Securities. So your right answer would be option A. ICICI Lombard General Insurance has ceased to operate as the subsidiary of ICICI Bank, as the shareholding of the ICICI Bank in the company has come down from 51.86% to 48.08%. Okay, that's why इसको ऑपरेट करने से रद्द कर दिया गया है. Now come down to the question number 10. नीरज चोपड़ा has been appointed as the brand ambassador of which country? आपको सभी को पता है नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडलिस्ट है हमारे ओलंपिक के, इंडिया से रिप्रेजेंट किए थे वो. उनको कौन सी कंपनी का एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर बना दिया? Your options are SBI Life Insurance, LIC, Tata AIA Life Insurance, PNB MetLife India Insurance. The right answer is option C, that is Tata AIA Life Insurance has appointed athlete Neeraj Chopra as its brand ambassador. Okay, come down to the question number 11. R.N. Ravi has been appointed as the new governor of which state? R.N. Ravi को कौन से स्टेट का न्यू गवर्नर अपॉइंट किया गया है? ये ऑप्शंस are नागालैंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला. Your right answer is option B, तमिलनाडु. R.N. Ravi जो कि फॉर्मर नागालैंड के गवर्नर है, उनको अपॉइंट किया है as the governor of तमिलनाडु. Okay, come down to the question number 11. Who has been appointed as the governor of Uttarakhand following the resignation of former governor Baby Rani Maurya? कौन है, कौन से गवर्नर को अपॉइंट किया गया है ऑफ उत्तराखंड फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ फॉर्मर गवर्नर बेबी रानी मौर्य? बेबी रानी मौर्य के रेजिग्नेशन के बाद किनको अपॉइंट किया गया है? लेट्स गो टू द ऑप्शंस फर्स्ट. ऑप्शन ए ब्रिगेडियर डॉक्टर B.D. मिश्रा, देन विश्वभूषण हरिचंदन, then Lieutenant General Gurmeet Singh, then Jagdeep Dhankar. Your right answer is option C, that is Lieutenant General Gurmeet Singh, who is retired Deputy Chief of Army, has been appointed as the Governor of Uttarakhand. Okay, come down to the question number 13. Which ministry has launched Swachh Sarvekshan Gramin 2021? कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021? ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, सॉरी 2 बार आ गया है, माफ कीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स. योर राइट आंसर वुड बी ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. यही आपका राइट आंसर है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. सो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ जल शक्ति मिनिस्ट्री Shri Prahlad Singh Patel has launched the Swachh Sarvekshan Gramin 2021 under Swachh Bharat Mission Phase 2. किन्होंने लॉन्च किया है? अगर ऐसा भी क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकेंगे, वो होगा प्रहलाद सिंह पटेल. ओके, जल शक्ति मिनिस्टर. Now who has been appointed as the new chief executive officer? Question number 14. सो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसको हम लोग CEO भी कहते हैं, ऑफ याहू. सो याहू के न्यूली अपॉइंटेड CEO कौन है? ये ऑप्शंस आर रिनेट नाइबर्ग, विलियम रूटो, जिम लैंजोन, स्कॉट कैसलर. सो योर राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी. और इसके एक्सप्लेनेशन को आप अगर देखना चाहिए तो आप लिख सकते हैं. वह द वेब सर्विस प्रोवाइडर याहू हैज नेम्ड जिम Lanzone as its new chief executive officer or CEO. So Jim Lanzone को Yahoo का CEO बनाया गया है. Okay, come down to the question number 15. Which nation's president has been ousted in a military coup? मतलब कौन से नेशन के प्रेसिडेंट को मिलिट्री coup से
उन्हें निकाल दिया, मतलब प्रेसिडेंट के पद से उन्हें बाहर कर दिया गया है। जैसे हम लोग को रिसेंटली सुनने को मिला था कि म्यांमार में ऐसा हुआ है, मिलिट्री ने दखल कर लिया है और वहां के शासन को अपने हाथों में ले लिया है। ऐसा कौन से प्रेसिडेंट के साथ रिसेंटली हुआ है, कौन से कंट्री के? सो ऑप्शंस आर नाइजर, गिनिया, Nigeria, then Egypt. Your right option would be option B, that is Guinea. Long-serving president of Guinea, Alpha Conde was ousted from power in a military coup. Then question number 16. Which organization has developed a new API to enable checking of COVID-19 vaccination status? कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने डेवलप किया है न्यू API to enable checking of COVID-19 vaccine? Your options are ICMR, Arogya Setu, AIMS, CoWIN. Right option would be option D. CoWIN has developed a new application programming interface called Know Your Customer or Client's Vaccination Status, that is KYC VS. Okay, Know Your Customer Vaccination Status. So CoWIN has developed. Okay, right answer is CoWIN. Come down to question number 17. Prime Minister Narendra Modi has inaugurated the Sardar Dham Bhavan in which city? So आप यहाँ देख सकते हैं इस डायग्राम, इस पिक्चर पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली इनॉग्रेट कर रहे हैं सरदार धाम भवन, लेकिन ये किस सिटी में है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आर हैदराबाद, अहमदाबाद, लखनऊ एंड न्यू दिल्ली। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज अहमदाबाद। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द सरदार धाम भवन in Ahmedabad, Gujarat through video conferencing. Come down to question number 18. Who is the winner of the F1 Italian Grand Prix 2021? आप यहाँ पिक्चर देख सकते हैं। अगर आपको नाम पता है तो आप जरूर कमेंट कीजिए, और नहीं पता है तो लेट मी टेल यू द आंसर। ओके, ऑप्शन ए है डेनियल रिकार्डियो, देन लुइस हैमिल्टन, देन लैंडो नॉरिस, देन जॉर्ज रसल। Your right answer would be option A, that is Daniel Ricciardo. So Daniel Ricciardo, McLaren, Australian Italian, won the Formula 1 Italian Grand Prix 2021. Daniel Ricciardo. Okay, come down to question number 19. Which state has launched the Millet Mission to become the hub of millet in India? कौन सा ऐसा स्टेट है जो मिलेट मिशन को बढ़ावा दे रहा है टू बिकम अ मिलेट हब इन इंडिया? ऑप्शंस आर गुजरात, तमिलनाडु, ओडिशा, छत्तीसगढ़। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने अनाउंस किया है लॉन्च ऑफ मिलेट मिशन। ओके, गोइंग टू प्रोवाइड प्रॉपर प्राइस रेट टू फार्मर्स टू माइनर सीरियल क्रॉप्स। नाउ कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 20. Who has become the first professional golfer in the world to receive the prestigious 10-year Dubai Golden Visa? कौन से ऐसा फर्स्ट प्रोफेशनल गोल्फर है जिन्होंने फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू रिसीव प्रेस्टिजियस 10-year दुबई गोल्डन वीजा, जिन्होंने जीता है 10 साल के लिए गोल्डन दुबई वीजा? सो ऑप्शंस आर जॉर्डन स्पेथ, रोरी मैकलॉरे, जीव मिल्खा सिंह, देन टाइगर वुड्स। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज जीव मिल्खा सिंह, जो कि हमारे मिल्खा सिंह के बेटे हैं। जीव मिल्खा सिंह हैज बिकम द फर्स्ट प्रोफेशनल गोल्फर in the world to receive prestigious 10-year Dubai Golden Visa in recognition of his outstanding achievements. Okay, ये मिल्खा सिंह के बेटे हैं, ये भी एक important point है। Come down to the question number 21. Who has been sworn in as the Chief Minister of Gujarat? गुजरात के नए चीफ मिनिस्टर कौन है? आप यहाँ पे पिक देख सकते हैं, ये है नए चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। सो ऑप्शंस आर आनंदीबेन पटेल, पुष्कर सिंह धामी, भूपेंद्र पटेल, आचार्य देवव्रत। So right answer is option C, Bhupendra Patel. So Bhupendra Patel has sworn in as the Chief Minister of Gujarat. Come down to the question number 22. The first ever Quad Summit 2021 is scheduled to take place on which date? So options are September 24, 26, 25 and 23. Right option is
A, September 24. So first ever Quad Summit 2021 ये होने वाला है. यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन विल गोइंग टू होस्ट द फर्स्ट एवर क्वाड समिट एंड एट द व्हाइट हाउस ऑन सितंबर 24. ये आपको याद रखना है, डेट भी याद रखना है और कौन होस्ट करने वाले हैं, जो बिडेन. ओके, व्हाइट हाउस में होने वाला है. क्वेश्चन नंबर 23. इंडियाज फर्स्ट फास्टैग बेस्ड मेट्रो पार्किंग फैसिलिटी हैज बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी? कौन से इंडिया के सिटी में फर्स्ट टैग, इंडिया का पहला फर्स्ट टैग बेस्ड मेट्रो पार्किंग फैसिलिटी किया गया है? ऑप्शंस आर लखनऊ, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, न्यू दिल्ली. इंडिया's फास्ट टैग बेस्ड मेट्रो पार्किंग फैसिलिटी at the Kashmir Gate metro station in partnership with Delhi Metro Rail Corporation. Okay. Come down to the question number 24. Which nation will host the 2021 SCO Summit in a hybrid format? कौन है, कौन सा नेशन है जो होस्ट करने वाला है 2021 का SCO Summit in a hybrid format? Options are China, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan. Option D is the right answer, that is Tajikistan. The 21st meeting of the Shanghai Cooperation Organization Council of Heads of State will be held in Dushanbe, Tajikistan in hybrid format. Come down to the question number 25. Who has been appointed as the chairperson of the Indian National Space Promotion Authorization Center in Space E? तो आपको देखने को मिल रहा है ये पिक्चर. सो इनका नाम आपको बताना है. प्लीज कमेंट करके बताइए मुझे. सो मैं आपको आंसर बताने वाली हूँ. उससे पहले ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं. ऑप्शन ए इज पवन कुमार गोयनका, राजन वधेरा, अरविंद मथ्यू, राजेश रेजूरीकर. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज पवन कुमार गोयनका, द फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा has been appointed as the chairperson of Indian National Space Promotion Authorization Center in Space E, जिसको शॉर्ट में कहा जा रहा है, the regulator for India's space industry. Come down to question number 26. Cricket player Brendan Taylor has announced his retirement from international cricket. Did he play for which country? सो ब्रेंडन टेलर ने अनाउंस किया है रिटायरमेंट के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट से. वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? वेस्ट इंडीज. ऑप्शंस है आपके ये, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, आयरलैंड. सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी. सो फॉर्मर जिम्बाब्वे स्कीपर एंड विकेट कीपर बैट्समैन ब्रेंडन टेलर हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट. कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 27. Prime Minister of India Narendra Modi has laid the foundation stone of the Raja Mahendra Pratap Singh State University in which city? Prime Minister नरेंद्र मोदी ने नया फाउंडेशन लेड किया है कौन से राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का किस सिटी में? इसका दो तरह से क्वेश्चन बन सकता है. किसके नाम से यूनिवर्सिटी सेटअप किया है, सिटी का नाम बता देंगे, या तो ऐसा करेंगे, और नहीं तो वो आपको पहले पूछेंगे कि कौन से सिटी में राजा महेंद्र प्रताप सिंह का यूनिवर्सिटी स्थापित किया गया है. यो ऑप्शंस आर लखनऊ, अलीगढ़, आगरा, गोरखपुर. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज अलीगढ़. प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी एट अलीगढ़, उत्तर प्रदेश. हम डाउन टू क्वेश्चन नंबर 8. आपको लग सकता है ये थोड़ा वीडियो लंबा लग रहा है, लेकिन आपको पूरे वीक का वीडियो मैं कवर अप करा रही हूँ. जितने सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैंने वो आपको पेश किया है. सो थोड़े बने रहिए, पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए तो ही आपको फायदा मिल पाए. सो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर CMD, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है, ऑफ द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको NSIC भी कहा जाता है. So your options are Alka Nangia Arora, Arundhati Bhattacharya, Chanda Kochar, Naina Lal Kidwai. Your option, right option is option A, Alka Nangia Arora. आपको यहाँ पे पिक्चर में भी देखने को मिल रहा है अलका नांग्या अरोड़ा का. और अलका नांग्या अरोड़ा
को अपॉइंट किया गया है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड से एज ए CMD, उसको कहते हैं चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, और शी हैज टेकन द एडिशनल चार्ज ऑफ द पोस्ट ऑन September 14, 2021, and she is the joint secretary in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise. Okay, come down to the question number 29. Which edition of Indo-Nepal Joint Military Training will be held from September 20, 2021 at पिथौरागढ़ in Uttarakhand? कौन सा एडिशन होगा इंडो नेपाल जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग का सितंबर 20 से पिथौरागढ़ में इन उत्तराखंड? इसका भी दो तरह का क्वेश्चन बन सकता है। नेपाल और इंडिया के बीच में जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग कहाँ पे बन रहा है, जगह के नाम पूछ सकते हैं, या फिर पूछ सकते हैं कितने तारीख कब हो रहा है, एडिशन कौन सा वाला एडिशन हो रहा है, कब हो रहा है या फिर कौन सा वाला एडिशन हो रहा है। ओके, 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। सो लेट्स कम डाउन टू द मेन क्वेश्चन विच वी आर लुकिंग राइट नाउ। सो इसके ऑप्शंस है 12th, 14th, 15th, 13th, मतलब ये कौन सा एडिशन है। राइट ऑप्शन वुड बी 15th edition of Indo-Nepal Joint Military Training Exercise Surya Kiran will be held from September 20, 2021 at Pithoragarh in Uttarakhand. The previous edition of the exercise Surya Kiran was conducted in Nepal in 2019. The exercise was called off in 2020 due to the COVID-19 pandemic. Okay, I hope it is clear. Come down to the question number 30. Nagaland's first and India's 61st Software Technology Park of India STPI Center was inaugurated at which place? So ये नागालैंड का सबसे पहला है और इंडिया का 61st सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, जिसको कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? ऑप्शन आर कोहिमा, मणिपुर, मिजोरम एंड असम. राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. सो नागालैंड कोहिमा, नागालैंड फर्स्ट India's 61st Software Technology Park of India was inaugurated at Kohima. हम सभी को पता है नागालैंड का कैपिटल है कोहिमा. सो इससे भी आपको पता लग सकता है. ऑफ कोर्स ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें मेन सिटीज में ही की जाती है. सो कोहिमा में इनॉग्रेट किया गया है. The inauguration of STPI Center is a fulfillment of Prime Minister Narendra Modi's vision of creating a technology ecosystem in the Northeast to create opportunities for future generation. Future generation के लिए opportunities generate करना मतलब उनके लिए job की facilities ले आना. इसी कारण नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे establish किया है. कुछ important point मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ से. Important takeaways of this particular टॉपिक दैट इज नागालैंड. सो यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है आप मुझे बताएंगे या मैं बताऊं? चलिए मैं आपको बता देती हूँ. चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड इज नेफ्यू रियो एंड गवर्नर ऑफ नागालैंड है RN रवि. ओके, RN रवि गवर्नर है. ओके, एंड चीफ मिनिस्टर लगभग सभी को पता है, मैंने सिर्फ एक बार आप लोगों को याद दिलाने के लिए बताया. दैट इज नेफ्यू रियो. ओके, नाउ इसी से हम लोग का वीडियो खत्म होता है. आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू. आपने मेरा ये वीडियो देखा और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही शानदार वीडियोस बनाने की कोशिश करती रहूंगी. आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए आपको और कैसे किस तरह की वीडियोस चाहिए. Till then, stay well and please like, share and subscribe my YouTube channel and press the bell icon. Okay? Till then, bye-bye.